A very good morning to all of you. बच्चों, आज मैं आपको प्रिंसिपल्स ऑफ गाइडेंस के बारे में पढ़ाऊंगा। निर्देशन के क्या सिद्धांत है। So first of all, we'll talk few things regarding principles of guidance. In fact, in order to organize a guidance program successfully, it is very much essential to understand the principles along with the meaning of guidance upon which the guidance process is based. आप सबको मालूम है कि किसी भी निर्देशन के कार्यक्रम को अगर सफल बनाना है तो सबसे पहले हमें निर्देशन के सिद्धांतों को समझना बहुत जरूरी है, निर्देशन के अर्थ को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सिद्धांत है यही सिद्धांत पर निर्देशन की प्रक्रिया निर्भर करती है। इन सिद्धांतों को जानने के बाद it is very much convenient to run this program very successful. Even most of the educationalists or say psychologists do not agree on the principles of guidance. अधिकांशतः सेक्स जो मनोवैज्ञानिक थे या शिक्षा जगत की जो हस्तियां थी वो सभी निर्देशन के सिद्धांतों को मानने पर कहीं एग्री नहीं करते थे। जैसे एग्जांपल के ये जॉन्स जो एक एजुकेशनलिस्ट थे, उन्होंने निर्देशन के 5 सिद्धांत बताए थे। हम्फ्री और ट्रेक्सलर ने 7, क्रो और क्रो ने 14 सिद्धांत बताए। उनमें से कुछ सिद्धांत कॉमन थे। सो सारे सिद्धांतों को मिलाकर हम लोगों ने कुछ सिद्धांत को हम पढ़ेंगे। जैसा मैंने already told about these things, Johns has given 5 principles of guidance, Humphrey and Texler have given 7, Crow and Crow have described 14 principles of guidance, and some principles are common. The principles convincing to all are as follows. So study of an individual and evaluation. मुख्य सिद्धांत है कि एक व्यक्ति का अध्ययन करना और उसका मूल्यांकन करना, ये प्रथम सिद्धांत कह सकते हैं। In any guidance program, unless and until correct information regarding person is not collected, if it is not collected, it is impossible to run this program. Hence, in order to collect such informations, it is very much essential to apprise the individual, to study him, and to run the programs which are based on various researches. And in order to run a guidance program successfully, cumulative record must be presented before the guidance programmers. In fact, this cumulative record give a very clear picture of person's achievement and progress to the guidance worker. As per this principle, the use of well selected standardized test for the study and appraisal of a person is proved very helpful. We can collect various facts regarding individual's achievements, their interest, his mental abilities with the help of these standardized tests. The maintenance of such facts as cumulative record is must for the guidance. So अगर एक व्यक्ति का अगर मूल्यांकन उसका अध्ययन करना है तो अध्ययन करने के कई तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले मैं जो बात करना चाहता हूँ संचयी रिकॉर्ड के बारे में। संचयी रिकॉर्ड क्या होता है बच्चों? विभिन्न जो मानकीकृत परीक्षण बने हुए हैं उन परीक्षणों के आधार पर व्यक्ति के संबंध में सूचनाओं को इकट्ठी करना और वो भी संचित करना। जैसे एग्जाम्पल के लिए कि इसने अभी ऐसा किया था, फिर 15 दिन बाद उसने ऐसा किया था, फिर 15 दिन बाद उसने ऐसा किया था।
तो चाहे व्यक्ति की उपलब्धियां हो, रुचियां हो, क्षमताएं हो, उन सभी क्षमताओं को मानकीकृत परीक्षणों के आधार पर, आप सभी को मालूम है मानकीकृत परीक्षण का अपना महत्व है, उससे जो प्राप्त रिजल्ट्स हैं वो विश्वसनीय होते हैं, वैध होते हैं। अतः उन रिजल्ट्स पर हमें रिलाय करना होगा और उन रिजल्ट्स के बेस पर हम एक रिकॉर्ड बनाकर तैयार रखेंगे, जिसके द्वारा हम किसी व्यक्ति के बारे में उसका अध्ययन कर सकते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गाइडेंस प्रोग्राम्स। The second principle of this guidance is to evaluate the guidance program. So evaluation of guidance program is must. The success of any guidance program should be explored in the form of changes brought time to time. It will result a different guidance to that guidance program. If such changes are not seen, then the entire program would be considered ineffective. बहुत क्लियर बात है बच्चों की, अगर जो भी हमने निर्देशन का एक कार्यक्रम किसी स्कूल, कॉलेज में या किसी भी व्यक्ति के लिए लागू किया है, उस प्रोग्राम का मूल्यांकन होना बहुत आवश्यक है। उस प्रोग्राम में जितनी कुछ जरूरत है परिवर्तन करने की, अगर वो परिवर्तन करने से रिजल्ट्स पर कोई प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, इसके लिए उसका मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। So evaluation of guidance program is essential for the success of guidance workers. Another principle is responsibility of skilled workers. So in any guidance program, the specific problems of individuals are tried for particular solution, and now it's responsibility of a psychologist or a say guidance program person that the guidance given by the person should be well equipped with all the informations which are necessary. If the person is not skilled, there will be always a question mark on the success of the program. So it is, ये बहुत आवश्यक है कि जो व्यक्ति गाइडेंस निर्देशन के कार्यक्रम को चला रहे हैं, जो निर्देशन देने का कार्य कर रहे हैं, वह पूरी तरह से दक्ष हो। अगर वो दक्ष नहीं है तो निर्देशन कार्यक्रम के सफल होने की संभावनाएं नहीं के बराबर है। Another principle which talks about the responsibility of teacher, principals, headmaster. से कोई भी गाइडेंस प्रोग्राम है वो किसी न किसी इंस्टीट्यूशन में रन किया जाता है। सो उस गाइडेंस प्रोग्राम से रिलेटेड जो टीचर्स हैं, जो हेडमास्टर हैं स्कूल्स में, तो अगर कॉलेजेस वगैरह में तो प्रिंसिपल्स हैं। सो ये बहुत आवश्यक है कि उसकी सफलता या असफलता जो गाइडेंस प्रोग्राम को चलाने वाले हैं उन पर निर्भर करती है, क्योंकि उनके अपने स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, और अगर वो स्पेसिफिक रूल्स को पूरी तरह से निभाते हैं तो गाइडेंस प्रोग्राम्स कैन बी conducted more smoothly. So advantage of guidance should be there. It is another principle of guidance, क्योंकि ये बताता है the benefit of guidance should be given not only to those who demand it directly or who expresses that there is a need, but the benefit of guidance should be given to those persons also who can benefit it directly or indirectly. Hence, we can say the scope of advantage should be more broader, more wider. So ये निर्देशन की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि न केवल वो जिस व्यक्ति को निर्देशन की जरूरत है उसी की मदद करता है, बल्कि
जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उस व्यक्ति से जुड़े उन सभी व्यक्तियों की मदद करता है जिनको उस प्रकार के दिशा निर्देशों की आवश्यकता होती है। गाइडेंस शुड बी गिवन बाय अ ट्रेन्ड पर्सन। बिल्कुल निश्चित बात है, अगर जो प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा गाइडेंस दिया जाएगा तो वो गाइडेंस 100% इफेक्टिव होगा। In order to accomplish guidance process, the entire responsibility of guidance should be of a trained person so that guidance programs can be executed very successfully, because that person has to contact to various related persons and departments. So all the success of the program largely depends on the trained person. Yes, the guidance program should be flexible. लचीला होना चाहिए, क्योंकि वेरिएशंस को अगर अडॉप्ट नहीं कर पाता, क्योंकि व्यक्ति की आवश्यकताएं, समाज की आवश्यकताएं भी फ्लेक्सिबल होती है, अगर उनके साथ वो अडॉप्ट नहीं कर पाता तो फिर चेंजेस नहीं ला पाएंगे, और चेंजेस नहीं ला पाएंगे तो गाइडेंस का जो मुख्य उद्देश्य है, गाइडेंस का प्रोग्राम है, वो सफल नहीं हो पाएगा। Yes, it is related with every aspect of the life. Man as a social being, and that the life of this social being has various aspects. So this guidance program should be related to all these aspects of the life. Maybe it is related with the physical health of the individual, the mental hygiene, his family issues, school issues, social needs, vocational needs. Each and every aspect of life is related with the individual, and so the guidance program is also related with the every aspect of the life. There is need of the cooperation among related person. Yes, preference should be given to all-round development, and yes, guidance should be given according to the stages. So डिफरेंट स्टेज हैं, स्कूल स्टेज पे अलग तरह की गाइडेंस चाहिए। अब जब एक्सप्लोर करेंगे एजुकेशनल गाइडेंस को तब और इस बारे में डिटेल बात करेंगे। सो स्टेजेस के आधार पर गाइडेंस देनी चाहिए कि चिल्ड्रंस के लिए अलग, एडोलेसेंट्स के लिए अलग, एडल्ट्स के लिए अलग, और डिजायरेबल असिस्टेंस जितनी जरूरत है उतनी सहायता की जानी चाहिए। इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, इट हेल्प्स इन अचीविंग यूजफुल ऑब्जेक्टिव्स। जो मुख्य उद्देश्य उनको प्राप्त करने में सहायता करता है। Yes, attitude of guidance is such a program that its attitude appears in the curriculum, contents and the teaching methods. Yes, guidance is for whom? Guidance is for every person. The main principle of the guidance is that it is not for the specific person. It is for all, or it should be for all, because at every step of life a person needs a guidance. क्योंकि नेक्स्ट प्रिंसिपल में मैं बात कर रहा हूं, इट इज अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। जीवन जीना है तो हमेशा गाइडेंस की जरूरत पड़ेगी। प्रैक्टिकली ये इट वाज रॉन्गली विजुअलाइज्ड दैट guidance should be given to the mal-adjusted persons only. No. It should be given to all persons. कुछ बातों के कारण जरूर ये कहा गया है कि उनकी जो गाइडेंस अधिकतर उन्हीं लोगों को दी गई जो मेल एडजस्टेड थे, लेकिन ऐसा नहीं है। एज पर द प्रिंसिपल ऑफ द फैसिलिटी ऑफ गाइडेंस शुड बी एक्सटेंडेड टू द मैक्सिमम पर्सन। एवरी मेंबर ऑफ द सोसाइटी is to be made felt that there is a sufficient, there are number of provision of guidance service available for him. ये जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। निश्चित रूप से, क्योंकि व्यक्ति को हर स्तर पर गाइडेंस की जरूरत पड़ती है, हर स्तर पर उससे समस्याओं का सामना करना पड़ता है, और बिना समस्याओं के समाधान किए वो व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। इसी प्रकार से किसी पर्टिकुलर एज ग्रुप के लिए नहीं है,
इट इज फॉर ऑल एज ग्रुप्स, क्योंकि समस्याओं का प्रादुर्भाव और उनका समाधान प्रयासों के द्वारा आर नेचुरल, hence the need of guidance in total lifetime always persists. Yes, the societies consist of persons. If the society is not made strong, it will lag behind. So the prestige of each member of the society has to be accepted, considered, which is very important. And yes, equal opportunity should be made available to each member of the society so that his personality should also develop. So निर्देशन का एक मुख्य उद्देश्य है कि समाज के प्रत्येक वर्ग के प्रत्येक सदस्य को का अपना एक महत्व है। ऐसा नहीं कि जिसके पास पैसे नहीं है, जो किसी पर्टिकुलर कास्ट का है, उसके लिए गाइडेंस नहीं है। नहीं, इट इज द एम ऑफ द गाइडेंस टू लेट एन इंडिविजुअल मूव टूवर्ड्स डेवलपमेंट। वह विकास की तरफ बढ़े, अपनी एनर्जीज, अपनी कैपेसिटीज का यूटिलाइजेशन कर सके, और उसके लिए ये इंसिस्ट किया जाना चाहिए कि उसके लिए भी एजुकेशन है, उसके लिए प्रोफेशन है, उसकी भी अपनी फैमिली है, उसके अंदर अपनी एबिलिटीज हैं। यस, वी शुड एक्सेप्ट द वर्थ ऑफ एवरी पर्सन। हमें हर व्यक्ति के महत्व को समझना चाहिए और व्यक्ति को महत्व देना चाहिए। गाइडेंस शुड बी बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव एनालिसिस ऑफ डेटा। जो कुछ सूचनाएं हमने विभिन्न मानकीकृत परीक्षणों के द्वारा संकलित की है, उनको ऑब्जेक्टिवली उनका विश्लेषण करें, और विश्लेषण करके, अगर ऑब्जेक्टिवली नहीं करेंगे विश्लेषण, तो हम कुछ भी निकाल नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर आंकड़ों के आधार पर कि उसका पहले, जैसे सपोज हमने कुछ गाइडेंस देनी है कि किसी को, व्यक्ति को इस क्षेत्र में जाना है, सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, उसके लिए उसका हमने इंटरेस्ट टेस्ट किया, वो सारी सूचनाएं हम लोगों को, उसका एप्टीट्यूड टेस्ट समय समय पर करता रहना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये कि जो भी डाटा हमने कलेक्ट किया है वो समय समय पर हम उसको एनालाइज करते रहें, बिकॉज एनालाइज अगर नहीं किया तो हम बता नहीं पाएंगे आगे क्या करना है, आगे किस तरह की गाइडेंस देंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है वो ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस शुड बी कंसीडर्ड। ये हमें मानना चाहिए। साइकोलॉजी भी हमें सिखाती है कि हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग है। इट्स अ वेल नोन फैक्ट दैट ऑल पर्सन्स आर नॉट अलाइक, इवन फ्रेटर्नल ट्विंस शो मैनी वेरिएशंस। युग्मज है उसमें भी अंतर होता है, तो हर व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से अलग होता है, बिकॉज उनका व्यक्तित्व भी अलग होता है। सो ये जो वेरिएशंस हैं, जो अंतर है, गाइडेंस प्रोग्राम में अवश्य देखे जाने चाहिए, क्योंकि वेरिएशंस के बहुत सारे कारण होते हैं। उनकी रियरिंग, उनकी लाइफ स्टाइल, उनकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, उनका डेवलपमेंट, उनका फाइनेंशियल स्टेटस, ये सब चीज़ें ऐसी है जो उसकी रियरिंग के समय से ही उसके अंदर कुछ अलग तरीके से डेवलप करता है। इसलिए हर व्यक्ति दूसरे से अलग है। ऑन द बेसिस ऑफ द रिजल्ट्स ऑफ वेरियस स्टडीज, हम ये नहीं कह सकते कि प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका हर प्रकार के गाइडेंस वाले के लिए वो चल जाएगा, हर के लिए इंडिविजुअल होगा। लेकिन हमें मानना, स्वीकारना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान जल्दी कर लेगा और कोई समस्या का समाधान नहीं कर पाएगा, बिकॉज हेरिडिटी और एनवायरनमेंट भी रोल प्ले करता है। नेचर एंड नर्चर ऑल्सो plays a very important role. So heredity and environment, due to these variations in among individuals, are very important, and it should be considered in any of the guidance program. एक बात और स्वीकार करनी पड़ेगी